Hello, good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel Biology Tutorials. Today we will study the next topic of the chapter number 2, that is sexual reproduction in plant, and today we will be discussing about megasporogenesis. But before we proceed to the megasporogenesis, you should know about the female reproductive part of the flower. It will provide the better understanding of the topic. So let's begin with this. This is the structure of the female reproductive part of the flower. There are different parts. First is the stigma, which is a disc-shaped structure which receives a pollen grain. The stigma will ultimately leads into the style, which is a tube-like structure which provides the passage for the male gamete. This style will leads into the swollen structure which is known as the ovary, and this which ovary consists of the ovule, and inside this is the ovule, and inside the ovule present a structure which is known as the embryo sac. This embryo sac is a thin walled structure consisting of an egg. So this is about the female reproductive part of the flower. Next we will study about the ovule. What is an ovule? This is very important question which can come in your board exam. That is the it can be come in the form of a diagram. Draw a well-labeled diagram of the anatropous ovule, or or explain the structure of the ovule. Okay, it can come in one or the either way. So what is an ovule? It is an integumented megasporangium found inside the body of the ovary, which later develops into the seed after the fertilization. On the left hand side, you can see the picture. It is the picture of an anatropous ovule. Anatropous ovule is the ovule which is inverted. Okay, we will be discussing the other types of the ovule in the next slide. So we will discuss here the structure and its various parts of the ovule. The first part is the funicle, which is also known as the stalk of the ovule. Next is the hilum. It is the point. This is the hilum. This one is the hilum. It is a point of attachment of the ovule with the funicle. Next is the micropyle. Micropyle, here it is by mistake, it was written pound, but here it is point. It is a point where the pollen tube enters. यहाँ से pollen tube enter करेगी, and it is the area, or it is the place from where the integuments are absent. Okay, from where the integuments are absent. What are integuments? Integuments are basically the covering of the ovule. Okay, it is the covering of the ovule. Sometimes it is surrounded by, sometimes the ovule may be surrounded by the one ovule, one integument, and that ovule is known as unitegmatic ovule. Okay, which can be seen in the higher dicots, or it can be ditegmatic ovule, that is two integuments is covering the ovule. Examples are the monocots and primitive dicots, and sometimes multicellular integuments are present, and in rare case an ovule is may be surrounded by three integuments, and that condition is known as tritegmic. Okay, and it can be seen in Asphodelus. Okay, and in some cases the integuments, in some cases the ovule, in the some ovule the integuments are absent. Okay, the next part is the chalaza part, which is thought to be the origin of the integument, and it is usually lies at the opposite end of the micropyle. This is the micropyle. Micropyle के opposite जो है वो है chalaza. Next is the nucellus. It is the mass of parenchymatous cells of which is present inside the ovule. It may be quite massive, and that condition of the ovule is known as crassinucleated ovule. मतलब जब जो न्यूसेलस है वो जो है बहुत ही ज्यादा मास में प्रेजेंट होगा ओव्यूल के अंदर, उस टाइप के ओव्यूल को कहा जाएगा क्रैसिन्यूसिलेटेड ओव्यूल। और जब न्यूसेलस जो है वो थिन अमाउंट में प्रेजेंट होगा ओव्यूल के अंदर, दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज
10 uninucleated ovule. Okay, clear है? Good. Next is the embryo sac. The embryo sac is the structure which is present inside the ovule. It consisting of the egg apparatus. The next and the last part is the vascular stand that help in the supply of the nourishment of the ovule. So this is in this we have discussed about the definition of an ovule and the structure of the ovule and its different parts. Now, depending upon the conformation and the orientation of the body of the ovule in relation to the funicles, there are about 6 types of ovule present. The first one is the orthotropous ovule. As you can see in the picture above it, that it is a type of ovule it is a type of the ovule in which the body of the ovule is erect, मतलब बिल्कुल सीधी होती है और चलेजा, हाइलम एंड माइक्रोपाइल तीनों एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं. एग्जांपल इज पॉलीगोनियम. द नेक्स्ट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, जो हमने अभी पिछले वाली स्लाइड में जिसका डायग्राम हमने पढ़ा, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल. इसके अंदर जो बॉडी है ओव्यूल की वो क्या होती है, इन्वर्टेड, उल्टी होती है, जिसकी वजह से जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम के, ये है हाइलम, आपको ये अगर नजर आ रहा हो, दिस वन मैं अगर मैप में मार्क कर देती हूँ, दिस इज द हाइलम. इसमें क्या है, ये इन्वर्टेड होती है ओव्यूल की बॉडी, और जो माइक्रोपाइल और जो हाइलम है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं. नेक्स्ट जो आता है दैट इज द हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल. इसके अंदर क्या है कि ओव्यूल जो है वो ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है, किसके राइट एंगल, फ्यूनिकल के. ये है फ्यूनिकल या स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, उसके राइट एंगल में प्रेजेंट होती है, और माइक्रोपाइल और चलेजा जो है वो एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट जो है दैट इज कैमिलीट्रोपस ओव्यूल, जिसके अंदर जो है ओव्यूल की बॉडी जो है वो बेंड होती है, कर्व्ड होती है, और कर्व्ड होती है, जिसकी वजह से माइक्रोपाइल और चलेजा जो है वो एक लाइन में नहीं प्रेजेंट होता. आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम के अंदर, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला, सॉरी दिस वन ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये है हमारा चलेजा एंड. ओके, जो नेक्स्ट टाइप का ओव्यूल है दैट इज हेमीट्रोपस ओव्यूल. इसमें क्या है कि ओव्यूल इज वेरी मच प्रोनाउंस. ओव्यूल की शेप इस तरह से होती है कि अंदर का जो एम्ब्रियो साइक है वो जो है वो कर्व्ड हो जाता है. ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से. देन इज सरकाइनोट्रोपस ओव्यूल. सरकाइनोट्रोपस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस एंड एक्सिस, द न्यूसेलस एंड द एक्सिस आर इन द सेम लाइन इन द बिगिनिंग. स्टार्टिंग में एक लाइन में होते हैं न्यूसेलस और उसका एक्सिस, ठीक है, ओव्यूल का एक्सिस है. लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती है प्लांट की, वैसे वैसे ओव्यूल जो है वो एनाट्रोपस होता जाता है, और द कर्वेचर कंटिन्यूज फर्दर एंड द माइक्रोपाइल अगेन पॉइंट्स अपवर्ड. मतलब कि होता वो धीरे एनाट्रोपस ही है, लेकिन उसके अंदर माइक्रोपाइल जो है वो ऊपर की तरफ होती है. उल्टा ही है, एनाट्रोपस जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर जो माइक्रोपाइल है वो उल्टी प्रेजेंट होती है. ठीक है, एंड दिस एग्जाम्पल इज अपोंचिया. So this is, I think this is the types of ovule is easily understood by you all. There are 6 types of ovule: orthotropous, anatropous, hemitropous, camelia-tropous, amphitropous and sarkinotropous. Okay, clear? Good. Next is the formation of megasporogenesis. How the megaspores they are formed. Okay, we will discuss this one by one. The ovule develops as a primordium over the placenta. The meristematic activity of the ovular primordium produces a prominent protuberance of the nucellus. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फिगर नंबर 1 में कि एक ओव्यूल प्राइमोडिया है जिससे आगे जाके ओव्यूल बनेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर दिस प्राइमोडिया विल प्रोड्यूसेस द न्यूसेलस, ये न्यूसेलस बनाना शुरू करेगा.
इनिशियली द इंटेग्यूमेंट्स जो है वो धीरे धीरे बेस से बननी शुरू होगी। आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये सब जो बी वाले पार्ट में आपको समझ में आ रहा है, ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये बननी शुरू हो रही है, ठीक है। दे ग्रो एंड कम टू सराउंड द न्यूसेलस, ये न्यूसेलस है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये धीरे धीरे जो है वो बननी शुरू हो रही है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, in the hypodermal region of the nucellus towards the micropylar end develops an archisporial cell। ये है हमारा micropylar end, this one ये हमारा है micropylar end। यहाँ पे जो hypodermal region है nucellus का वो क्या बनाएगा, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल है वो डिवाइड करेगी दो पार्ट्स में, प्राइमरी पैराइटल सेल वॉल एंड इनर स्पोरोजेनस सेल्स। जो ये है दीज आर द प्राइमरी सेल वॉल, मैं आपको इसमें समझ में आएगा, ठीक है। डिवाइडेड इनटू आउटर प्राइमरी सेल वॉल एंड इनर sporogenous cells। These sporogenous cells will commonly functions directly as a megaspore mother cells। जो सेल्स हैं हमारी, कौन सी सेल्स हैं, स्पोरोजेनस सेल। जैसे आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में स्पोरोजेनस सेल्स जो है वो डिवाइड करती हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। यहाँ पे जो स्पोरोजेनस सेल्स है इट विल नॉट डिवाइड, इट डायरेक्टली विल function as a diploid megaspore mother cells, okay, or megasporocytes। These megasporocytes will undergo meiosis to form the haploid 4 megaspores। समझ आया, जो सेल्स थी ये वाली, ये 4 में डिवाइड हो गई, 1 2 3 4। पहले वाली तो पैराइटल सेल थी ही, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। जो ये वाली थी इसके बाद ये 4 में डिवाइड हुई स्पोरोजेनस सेल्स, उनको क्या कहा गया, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ठीक है। अब द ओनली चैलेजा मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल। जो नेक्स्ट में आपको समझ में आएगा, सिर्फ सी वाला पार्ट देखिए, जो चैलेजा वाला है, ये जो स्टार्टिंग में जो आपको दिखाई है माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइलर एंड वाला और जो नीचे वाले हैं वो क्या है, हमारे चैलेजा एंड के मेगास्पोर्स है। तो उसमें क्या था कि जो ऊपर के जो 3 थे, जो माइक्रोपाइलर वाले एंड के जो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ जो है वो चैलेजा रीजन वाला हैप्लॉइड जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहेगा, ठीक है, वो फंक्शनल रहेगा, और बाकी के जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है वो बड़ा होगा, ठीक है, धीरे धीरे एनलार्ज होता जाएगा। आपको यहाँ पे साइज में डिफरेंस नजर आ रहा होगा, सी वाले डी वाले इसमें ये द साइज इज स्मॉल, और जो इसके अंदर ई वाले में है जो इसका साइज जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। दिस एनलार्ज मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर्स विल अंडरगो 3 डिविजन्स। कौन सी डिविजन्स होंगी, ये होगी कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो 3 बार डिवाइड करेगा। पहले 1 डिवाइड हुआ, 1 से बने 2, ठीक है। अब नेक्स्ट में ई वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पे बने 4, और तीसरे डिवाइडर में क्या बने, तीसरे में क्या बने 8, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस होगी 3 बार, 3 बार कितने बनाएंगे, टोटल 8 न्यूक्लियाई बनाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड हो जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे 3 ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आप जी वाले पार्ट को देखिए, 3 वाले में ऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है। 3 माइक्रोपाइलर एंड पे ऑर्गेनाइज, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑर्गेनाइज हो चुके हैं 3 ग्रुप में, ठीक है। जो 3 सेल जो है उसको वो कहे माइक्रोपाइलर एंड पे जो है उसको कहा जाएगा एग अपैरेटस, ठीक है। 2 जो है मिडल बीच में रहेंगे और सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाएगा, और 3 जो है वो एंटीपोडल सेल कहा जाएगा जो चैलेजर एंड पर है। एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम अ, समझ में, एम्ब्रियो सैक जो है वो डेवलप किससे करेगा, सिंगल मेगास्पोर से, जिसको हम बोलेंगे मोनो, उस टाइप को उसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। अब आपको ये देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा इजीली, एच वाले पार्ट को देखिए, ये अरेंज हो चुके हैं,
तीन जो है माइक्रोपाइलर एंड पे हो गए, इनको कहा जाएगा सिनर्जिड्स। और यहाँ तीन जो है वो चलेजा एंड पे है, इनको बोला जाएगा एंटीपोडल सेल्स। और जो बीच में है दो, इनको कहा जाएगा पोलर न्यूक्लियाई। अगर हम बात करें एम्ब्रियोसैक की, तो एम्ब्रियोसैक क्या है, ये पूरा जो है ये बन चुका है। ये आई वाला पार्ट फिगर देखिए, दिस इज द एम्ब्रियोसैक विच इज नथिंग बट एन ओवल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर which is covered by a membrane derived from the megaspore wall। तो अगर पूछा जाए एम्ब्रियोसैक के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, तो कितने न्यूक्लियस होंगे, 8 न्यूक्लियस। और सेल कितनी है, 7। न्यूक्लियस काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस कितने हैं, 8। और सेल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, क्योंकि जो सेंटर वाली जो सेल है वो फ्यूज होके क्या बना लेती है, सिंगल सेल। पर न्यूक्लियस तो दो ही है, तो इट कैन कम इन 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो एम्ब्रियोसैक्स में कितने सेल्स होते हैं, सेल्स जो है वो है 7, और जो न्यूक्लियाई हैं वो हैं कितने, 8। वो कैसे अरेंज हुए हैं, जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं वो कि 3 अरेंज हुए हैं, उनको क्या कहा जाएगा, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स कैसे कहा जाएगा, जो साइड के जो दो हैं, ये वाले और ये वाले, दीज आर नोन एज सिनर्जिड्स। और जो सेंटर वाला है उसको कहा जाएगा oospores। ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, माइक्रोपाइलर, इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो ये 3 का स्ट्रक्चर, उसको कहा जाएगा एग अपैरेटस। क्या कहा जाएगा, एग अपैरेटस। और ये जो एग अपैरेटस है, इट इज basically it is attached with the help of the filiform apparatus। यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है filiform apparatus। आपको मैंने पहले ही बता दिया, लास्ट जो साइड के जो दो हैं उनको क्या कहा जाता है, सिनर्जिड। और सेंटर वाला है उसको कहा जाएगा एग और द oospores। ठीक है। और जो सेंटर वाला है उसको क्या कहा जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये है पोलर न्यूक्लियाई। और जो उस पे है हमारा चलेजा एंड पे है, उसको क्या कहा जाएगा, एंटीपोडल सेल्स। क्या कहा जाएगा, एंटीपोडल सेल्स। अब सिनर्जिड्स का फंक्शन क्या है, सिनर्जिड्स जो हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स ये वाले, दीज आर द synergids, these are the synergids। One second, these are the synergid, SYN। these two, this one and this one, these are the synergids। इनका function क्या है, they help in obtaining the nourishment from the outer nuclear cells and it will guide the path of the pollen tube by secretion and by their secretion and function as a shock absorber during the penetration of the pollen tube into the embryo sac। क्लियर है। और जो लास्ट के जो सेल्स हैं नीचे वाले चले जाए, उनको क्या कहा जाएगा, एंटीपोडल सेल्स। They are also known as the vegetative cells of the embryo, which may degenerate soon and take part in the absorbing nourishment from the surrounding cells। Clear? So, with this, we have completed this chapter. We have completed this topic, and there are few topics remaining. That is the pollination, fertilization, and the post-fertilization events. And there are few compatibility, sexual incompatibility वाला जो topic है वो बचा हुआ है। So if you have any query regarding the megasporogenesis, you can write it in the comment below, and please like and subscribe this video. Thank you so much.